حضرات، کافی مدت کے بعد میں اس طریقے کے سامعین دیکھنے کے لیے ملے ہیں کہ الحمدللہ اس سردی نے بھی آپ کے جوش کو ٹھنڈا نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور ظاہراً تو تقریباً یہ جلسہ کامیاب نظر آتا ہے، بس دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو حقیقتاً قبول فرمائے۔ آج کے اس جلسے کی صدارت ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، بھائی ہیں، جناب حافظ و قاری اسماعیل صاحب قبلہ، اور ان کے بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک ان سب بھائیوں کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک دونوں جہان کی بھلائیاں انہیں عطا فرمائے۔ اچھا، ممبر نور پر علماء اکرام اور آپ کے علاقے کی مساجد کے ائمہ عظام تشریف فرما ہیں۔ میں لگ بھگ تقریباً ان سب سے واقف ہوں، یہ مجھ سے واقف ہیں۔ آپ کی بستی میں میری پہلی حاضری ہے بغرض تقریر، ویسے میں اسماعیل بھائی کے ہاں ملاقات کے لیے آتا رہتا ہوں۔ اچھا، مجھ سے قبل ابھی آپ نے نعت نبی شاعر ہندوستان جناب حاجی عثمان رضا ہارونی صاحب سے سنا، جو آپ کی ان سے محبت ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی غریز نہیں ہے کہ یہ بالیقین نعت نبی کا صدقہ ہے۔ بس اللہ پاک اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، بڑی لمبی تمہید کا تو وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری آج کی اس بزم کے جو خصوصی خطیب ہیں، اولاد رسول، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا سید فیضان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہم سب لوگ سنیں گے۔ اجازت اگر آپ دیں تو پھر بات شروع کریں۔ اچھا، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، لیکن وقت میرے پاس بھی نہیں ہے زیادہ، اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ نقابت فرما رہے ہیں ہمارے جلسے کی ہمارے دوست جناب مولانا شارق کمال صاحب، بڑے اچھے انہوں نے شعر سنائے، اللہ پاک انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اچھا، لمبی تمہید تو نہیں ہے، لیکن ممبر نور پہ تشریف فرمائے، ہمارے سب دوست ہیں، یہ ساتھی ہیں، سارے لوگ ساتھ میں ہم لوگوں کی تعلیم رہی ہے۔ قاری ظفر صاحب ہیں، قاری زبیر صاحب ہیں، رضوان صاحب ہیں، مولانا جابر صاحب ہمارے امام بھی ہیں ماشاءاللہ، قاری عارف صاحب ہیں، مولانا شرافت صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور دیگر حضرات بھی ہیں۔ انشاءاللہ سب کے چہرے کا دیدار کرتے رہیے، اور مجھے اجازت دیں کہ میں شروع کروں۔ تو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ اچھا کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وکفا، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ برادۃ التقیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، والحمدللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ سب لوگ باواز بلند پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ
बज़्म मुक़द्दस जनाब सैयदुल औलिया सैयदी सरकार पीर पीरा मीर मीरा जनाबे गौसे आज़म बड़े पीर साहब रदी अल्लाह ताला अन्हों से मंसूब है। अल्लाह पाक हम सबको गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। रब्बे क़दीर इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बड़ी वलवला अंगेज़ जो तकरीरें होती हैं ना, मैं वो तकरीरें करने का आदी नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये है, ये जितने बैठे हैं ना आप देख रहे हैं, मैं इन सब से कम इल्म हूँ। ये सब मुझसे सीनियर थे, मुझसे अच्छे थे पढ़ने में, सबसे कम इल्म हूँ, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे यहाँ आपके रूबरू खड़ा किया है। तो बड़ी बलबला अंगेज़ तकरीर करने का ना मैं आदी हूँ ना मुझसे होती हैं। बस कोशिश ये रहती है कि कुछ जो थोड़ा सा नाक़िस इल्म मेरे पास है उसकी कुछ बातें आप तक पहुँचा सकूँ, तो कोशिश करेंगे। अब एक जहन बनाना तकरीर सुनने का भी, अब लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि शुरू करी कहाँ से जाए। वो कहते हैं ना कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। समझ में नहीं आ रहा। जाबिर साहब का हुक्म है कि आला हजरत सरकार का एक कलाम है, उसके 2 शेर पढ़े जाएं। अब उस्मान भाई बैठे हैं, बोलो मैं पढ़ूं कैसे? नहीं आप मेरे छोटे भाई हैं, पढ़िए आप। सुभान अल्लाह। उस्मान भाई का भी हुक्म हुआ है और हमारे भाई हैं, हुक्म है। अच्छा, फिर मैं 2 शेर आला हजरत सरकार की नात से शुरू करते हैं, फिर तकरीर शुरू करेंगे। तो बुलंद आवाज से एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, गम हो गए। अच्छा, उस्मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह मजमे में भी हाजिर होंगे। उस्मान भाई ने भी हज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ खाकसार ने भी। ये मेरे आका का फैजान है कि मैंने 17 मरतबा उम्रा किया। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत कई मरतबा नसीब हुई। अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। हम सब दूर हैं वहाँ से, लेकिन हमारा अकीदा है कि हम जहाँ से भी अपने आका को पुकारते हैं, हमारे आका सुनते भी हैं, उसका जवाब भी अता करते हैं। तो शेर लिखा है आला हज़रत ने, सुने। गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, गम हो गए। और समात करें। मैं दूर हूँ तुम तो हो मेरे पास, मैं दूर हूँ तुम तो हो मेरे पास, मैं दूर हूँ तुम तो हो मेरे पास, सुन लो मेरी पुकार, गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, गम हो गए। और ये आखिरी शेर, गम हो गए। अच्छा, हमें कोई परेशानी आती है तो हम अपने नबी ही को तो याद करते हैं ना, तो सुने। गम हो गए बिगड़ा जाता है खेल मेरा, 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 आका आका सवार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, गम हो गए। बुलंद आवाज के साथ एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। हज़रात, अब बिल्कुल बात शुरू करते हैं। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत पढ़ी
इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और एक और आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी जो उम्मत है उस उम्मत से कह दो कि पूरी दुनिया की तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर तुम हो। क्या फरमाया? सबसे बेहतर तुम हो। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अच्छा, इस उम्मत में पैदा होने के लिए हमने कोई कोशिश की थी क्या? अल्लाह पाक चाहता आदम अलैहिस्सलाम से कितनी शरीयतें आई होंगी, 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, सब अपनी अपनी शरीयतें लेके आए। अल्लाह ताला चाहता किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर देता, और वो चाहता तो ये मुसलमान भी हम क्यों होते? हमने कोई कोशिश की थी? नहीं की थी ना। इसमें हमारी कोई कोशिश नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है। इस उम्मत में जो हमें पैदा किया है ये मेरे रब का एहसान है। ये अल्लाह का एहसान ही तो है ना हमारे ऊपर। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब मैंने जो कहा था ना कि हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, आज हम जिक्र करते हैं औलिया अल्लाह का। आज महफिल उनके नाम की हमने सजा के यहाँ रखी है। हम सब लोग आज उनके नाम का जिक्र करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अब सोशल मीडिया का टाइम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सुनना, समझना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं बंद अल्फाज में सिर्फ बोलूंगा, समझना उसको। आज पूरी दुनिया का माहौल क्या है आप देखें। पूरी दुनिया के किसी भी गोशे में, किसी कोने में चले जाएं, किसी खित्ते में पहुंच जाएं, पूरी दुनिया की सारी कौमें, यहूद हो, नसारा हो, जैनी हो, बौद्धा हो, हुनूद हो, सारी कौमें पीछे किसके लगी? क्या उन्होंने हमारा दीन पढ़ा? क्या उन्होंने हमारा कुरान पढ़ा? फिर वो हमारे दुश्मन कैसे हुए? उन्होंने हमारा कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने हमारा दीन नहीं पढ़ा। अरे अगर वो कुरान पढ़ लेते, उसे समझ लेते, तो वो गैर मुस्लिम ही क्यों रहते? उन्होंने उसको नहीं पढ़ा। लेकिन अभी देखा वो वसीम रज़वी ने वो 26 आयतें निकालो। अब किसी में दम है हम में से, आवाम में से मैं पूछूं, अब हम दीन जानते कितना है? हमें दीन की मालूमात कितनी है? उसने कहा कि दीन में ये आयतें हैं, ये जिहाद को बढ़ावा देती हैं। एक आयत का रेफरेंस दिया उसने, एक आयत का हवाला दिया, सूरह तौबा को उसने खोला 10वें पारे के अंदर, कहा ये 5वीं